Hello friends, welcome to Career Academy digital platform. So today's we are going to learn about something new and which is very popularly you do not know how to tackle it. The concept is very simple. It is the session number 4 and the today's topic is on reading comprehension. Definitely majority students are doing something which they don't know. Yes, this is the unseen paragraph majority ask in examination, so we have to tackle it. So what is the core concepts are there? Yes, today we are giving the full detail, how to crack it, what to do, and what is the aspects that we have to be consider in the mind. So what will you learn in this session? How to crack reading comprehension. Yes, it is not a single day topic that you sit and read 10 or 12 or 20 or 30 hours and get it the concept. Yes, but if you know what is the actually meaning of it or how to crack it, what is the procedure, what are the steps that included, it is the most useful thing. So start करते हैं आज का सेशन. यस, हिंदी और इंग्लिश दोनों रखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा समझने में. सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? Yes, today's the topic is a person who never made a mistakes never tried anything new. अगर आपने कुछ नया ट्राई ही नहीं किया है लाइफ में तो आप आगे नहीं बढ़ सकते. If you do not do nothing in your life or you not made a mistakes, you have nothing tried. Make mistakes, so many mistakes, correct it and again do it, that is the very useful to you. So this is the most important thing. So again it is the said by the Albert Einstein. Again I like the thought and it is a very useful to you also. What the thought is saying that a person who never made a mistakes never tried anything new. अगर किसी आदमी ने कुछ गलती की ही नहीं है तो उसने कुछ नया ट्राई ही नहीं किया. अगर हमारा आरसी हर बार सही हो जाता तो आरसी का अगर हम लोग लेक्चर ही नहीं लेते. Yes, definitely it is the very easy thing if you know certain points. Just like today's session definitely dedicated towards the reading comprehension. So please stay tuned with the last till last the points what actually we want to say. So here is the thing. Please take a pen and paper if it is necessary to understanding because sometimes we forget it while saying it. Yes, if you know or if you see this video for 3 to 4 times, definitely you get the concept what the sir actually is saying. So reading comprehension, every exam has a reading comprehension, but very few people are know that how to tackle it. So here is a 9-step process. Please follow them, try to implement it. Sometimes we are doing well, sometimes we are not doing well. So it is easy to follow majority of the rules. So it will become very easy to crack the RC. So here is the thing. First, what is the first thing is saying? Understand the structure. जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है वो हमको पता होना चाहिए. एंड द टाइप्स ऑफ द पैसेज, विच टाइप ऑफ पैसेज इज गिवन इन द एग्जामिनेशन. व्हेन यू ग्लांस थ्रू इट यू आर एक्चुअली गेटिंग द कंसेप्ट ऑफ इट. व्हेन यू रीड्स और व्हेन यू प्रैक्टिस सो मेनी आरसीस, बट उसके लिए उसको पता भी होना चाहिए ना कि क्या हमको आइडेंटिफाई करना है. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? यू नीड्स टू बी, इट्स अ नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपोजिटरी है या परसुएसिव है. So what is the thing, all these things? So it is nothing but narrative means focuses on a storytelling. किसी तरह की स्टोरी कही होगी आपको with a clear sequences of event. जो घटनाक्रम है उसको एक श्रेणी में दिया जाएगा. So उसको क्या बोलेंगे हमको? Narrative means कोई स्टोरी होगी, हमको यही फोकस करना है. So वो है, अगर वो है तो बहुत ईजी है. Sometimes they also give the some easy RC, sometimes they do not give, sometimes they give descriptive, पेंट्स अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन. किसी आदमी के बारे में बताते हैं, किसी प्लेस के बारे में बताते हैं और अगर कोई वस्तु है उसके बारे में बताते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का पैसेज है हमारे पास. सेकंड आया, थर्ड आएगा एक्सपोजिटरी. एक्सप्लेन और इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक. यस, दिस इज द टॉपिक विच फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. Many times you have seen or number of times when you see that there are the certain topics, inflation है, बैंक है, बजटरी है, फिजिकल पॉलिसी है, कोई भी टॉपिक अगर ले ले और उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन और पूरा का पूरा आरसी यानी पैराग्राफ दिया गया है. सो इट इज कॉल्ड एज अ एक्सपोजिटरी, मीन्स एक्सप्लेन और इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक. एक्चुअली इट इज अ इजी बट यू नीड्स टू डिवोट द टाइम according to my point of view. So this is the thing. The fourth one is a persuasive. What is the meaning of persuasive? Aims to convince the reader of a particular point of view. अगर कोई लेख आर्टिकल्स लिखा है
और उसमें कोई पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है, वो आपको क्रैक करना पड़ेगा, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो आपको समझना पड़ेगा, तभी वो आपको समझ में आएगा. सो देयर आर द 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज गिवन इन द सेंटेंस और पैराग्राफ, सॉरी. So if you crack the what is the structure, then it will become easy to how to settle it down. Again, there are 4 topics are there. Majority we are asking or given examination for the third expository. What does that mean? अगर आपको कोई टॉपिक या इंफॉर्मेशन दिया गया है, उसके बारे में ही समझूती देनी होगी हमको. मेजोरिटी स्टोरी हमको आती है, किसी का पर्सन का, प्लेस का या थिंग का कुछ भी दिया हुआ है वो हमको समझ में आ रहा है. और लास्ट में होगा परसुएसिव, एम्स टू कन्विंस द रीडर्स और अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू. किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में आपको बताया जाएगा. सो व्हेन यू रीड द आरसी, द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट टाइप ऑफ आरसी और स्ट्रक्चर इज गिवन इट. ओके, शैल आई गो फर्दर? यस, डेफिनेटली. सेकंड आएगा, सो प्लीज टेक अ नोट व्हाट इज द इंक्लूडेड इन द आरसी. आपने आगे की स्लाइड अगर नहीं स्क्रीनशॉट डाला है तो प्लीज एसएस ले लीजिए इसका, मैं साइड पे हो जाता हूँ. ओके, हैव यू टेकन इट? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सो सेकंड आएगा, क्या है? डेवलप स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी. डेफिनेटली अगर हमारी वोकेबुलरी बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली हमको कोई दिक्कत नहीं होगी व्हाट द सेंटेंस इज सेइंग दैट और व्हाट द टॉपिक इज एक्सप्लेनिंग. So for that particular purpose, we have also started a vocabulary videos on our channel. If you are new to us, please go to there and see the vocabulary sessions. I have majority tried to give you 40 words in a one video. So definitely there are lots of videos are there, and they are also upcoming in the upcoming sessions. So we needs to find out. Yes, definitely. If I go for a particular language, just like गुजराती है, हिंदी है और इंग्लिश है, अगर मेरे को उसका मतलब ही नहीं पता है तो मैं क्या आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा. So for that particular purpose, we needs to build a strong vocabulary. According to my point of view, 60 to 80% of vocabulary, if you are strong, then you can actually crack the RC. So for that particularly, what we have to do? Regular read diverse materials such as a newspaper आपको पढ़ना पड़ेगा. अगर मैगजीन्स का आपको शौक है तो मैगजीन भी पढ़िए, कोई भी पढ़िए, बट वो इंग्लिश में होनी चाहिए. एंड इफ देयर इज अ सेंटेंस और वर्ड्स व्हिच कैन नॉट बी अंडरस्टैंड बाय यू, यू हैव टू डेफिनेटली गो थ्रू द गूगल एंड जस्ट सर्च इट. What is the meaning of it? And definitely if you go for some words, then there is the anamnesis also there, opposite words is also there. So you also take down that word. You needs to be create the family of that word. So it will be very useful to you. Next आएगा academic journal. अगर आपको शौक है तो academic journals are very popular. बहुत सारे लोग पढ़ते हैं. If you are also the lover of books, then this is the great thing. Sometimes I have seen one examination, one person is reading a biopic, so many persons biopic or autobiography. So at that time there are the words that are usually going through their words in a books. So it is very useful to that person in examination because he has the habit of reading the books. Books में भी बहुत सारे words आते हैं नए नए जो आपको नहीं पता है, बस वही तो पता करना है. Next आएगा use vocabulary building apps or flashcards to learn new words. Definitely I have given one. Those who have attended the batches, there is a one definitely good thing is Google Word Coach. You have to go to where? Open the Google and type these 3 words, and whichever the first come, don't install any application. There is a word which has a 2 options, similar or anonymous, opposites. So you have to click it and practice it. I have told many times that if you go through this function of Google, very nice, because if you go through this function, it is the very useful thing for you, because if you do it wrong, this word is again comes towards on your way 3 times. So until you get it corrected, this word is repeated many times. So आपको समझ में आ ही जाना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं ये लोग. ओके, सो आई थिंक एप्लीकेशन में बोला फ्लैश कार्ड की हमको अभी जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर यूजिंग द फेमिलियर विद द मोबाइल यूजिंग फ्रेंडली पर्सन. ओके, नेक्स्ट आएगा अपने पास प्रैक्टिस यूजिंग न्यू वर्ड्स इन अ सेंटेंस टू रीइंफोर्स योर अंडरस्टैंडिंग. नए वर्ड्स आपको पता होने चाहिए. एवरी डे यू हैव टू लर्न 5 न्यू वर्ड्स अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आप किसी भी जगह पे हो, आज से 5 नए वर्ड सीखिए, उसके सिमिलर और एनोनिमस के साथ, और उसके सेंटेंस में किस तरह से उपयोग होता है उसके हिसाब से, तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा. सो दिस आर द थिंग्स यू नीड्स टू बी अंडरस्टैंड. समझ में आया?
फर्स्ट स्टेप था, क्या था हमारा, प्लीज चेक इट आउट, देखिए फर्स्ट स्टेप था हमको टाइप्स पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर। सेकंड आएगा हमारा स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी सेशन होना चाहिए। थर्ड वन इज, yes, this is the most important thing, active reading techniques. Some persons are only reading, they don't know what they are reading, so emphasize on the thing which are very useful according to my point of view. If you read, then start slowly, develop the habit of reading slowly and with understanding. At certain level you are enhancing the speed, but when you are starting to read, you are going so many fast or rapidly, then it is not useful to you. Start reading slowly but with understanding, then enhance the speed at a certain level. After 1 week, 2 weeks, you are getting good at it. Just like I am speaking in English, definitely bro, it takes a lots of time and lots of practice and lots of patience to speak it, what is actually mine, not translating in it. So this is the way, I am just giving you the example. So what is the first thing that you have to do in while reading? So what are the steps? The first is the skimming. Quickly go through the passage to get a general idea of the content. Just write and go see the main words. So आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या बोल रहे हैं. Next आएगा scanning. Look for a specific information or a keyword related to the questions. अगर मैं हूँ आपकी जगह पे तो मैं डायरेक्ट यही करूँगा, मैं डायरेक्ट जाऊँगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चंस में कोई एक आधा ऐसा वर्ड आएगा जो डायरेक्ट लिखा हुआ होगा वो पैराग्राफ में, सो वहाँ से मैं डायरेक्ट उठा के ले लूँगा. If you are given a 10 questions, 2 to 3, 4 are questions are directly you can get it or nearby it. You just needs to scanning it. So this is the very useful method. Skimming हो गया, आपको फास्ट में देख जाना है, जोना है. I am actually not good at in Hindi, but I am trying to speak it. So I will definitely try to improve it. Okay. So this is the thing. Yes. Why I am telling you that skimming करना है तो आपको ऊपर पर देखना पड़ेगा कि क्या लिखा है, वो वर्ड आरसी में किधर है, उसको स्किमिंग बोलते हैं. स्कैनिंग मतलब उसके अंदर कोई एक वर्ड है जो डायरेक्ट आपको आंसर के बाजू में लेके जाएगा, तो उसको भी आपने अपने साथ रखना होगा. और लास्ट में आएगा इंटोनेटिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटोनेटिंग? इंटोनेटिंग मतलब अंडरलाइनिंग और हाईलाइटिंग की पॉइंट. हमारे पास ऐसा टाइम नहीं होगा कि हमको किसी वर्ड पे अंडरलाइन करनी पड़ेगी या टाइम मिलेगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है. मेन आइडियाज एंड द अनफेमिलियर वर्ड्स, you needs to go through it. Every word there is in the RC is not known by you also. Sometimes if I go to the exam, I will also not know the exam, but उसके लिए भी एक ट्रिक है, वो हम तो लास्ट में देखेंगे. So these are the things. Annotating, underlining, highlighting key point. अगर आपके पास पेन और पेपर है तो लिख लीजिए कि these are the tone, these are the things, that are the data that is given in the RC. Yes, there is a RC in the besides the questions, but these are the things that you have to look for. So third one is again active reading. Try to scanning it, skimming it and intonating it. Fourth one आएगा understand questions type. Definitely there are so many types of questions are there. In majority I have come out this type of questions are there. First is main idea questions. वो जो आरसी दिया हुआ है उसका मेन सार क्या है उसका हार्ट, कर्क्स पार्ट, जिक्स पार्ट. सो वो हमको पता होना चाहिए कि उस किसके बारे में बात कर रहे हैं. आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम, मैंने बोला ना अभी जिक्स पार्ट ऐसा बोला, और मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज. डिटेल क्वेश्चंस, अगेन देयर आर समटाइम्स डिटेल क्वेश्चंस भी होंगे. लुक फॉर अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स मेंशन इन द टेक्स्ट. Sometimes they are writing it. Every question is not hard. Actually, every question is very easy, but we need to devote our time. If we devote it, we will definitely get it. So time management is also there. वो लास्ट में आता है, अभी आएगा. Yes, third one आएगा inference questions. Draw conclusion based on the information not directly stated. अगर कुछ conclusion निकल के आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं ये लोग, सो अपने को कंक्लूजन भी पता होना चाहिए. दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नॉट डायरेक्टली स्टेटेड, वो डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है. अगर आप कोई पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि समटाइम्स दे आर सेइंग दैट दिस इज द मोरल एंड वी हैव टू कैच दैट मोरल. व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ इट? यस, डेफिनेटली. vocabulary in the context, determining the meaning of the word based on its uses in the passage. This is the best thing that many teachers are telling in the when they are teaching the English and in RC. If you do not know the meaning of the word, then you have to just do that. Just read the sentence and without reading that word, if you know that there is a something like that or that is the thing that near comes to it,
it is the word meaning. Majority it will become successful to find out the meaning. But if you don't know, then again read the above sentence and below sentence of it with that sentence particularly, which word you actually do not know. So it is also thing when you are getting or come out with the solution that this word meaning is nearly to that meaning. I hope you get the concept what I am saying that वोकेबलरी में जो वर्ड है ना उसको हमको पता नहीं होगा तो उसके आगे पीछे का सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा और वो सेंटेंस भी पढ़ना पड़ेगा विदाउट रीडिंग दैट वर्ड. मेनी टाइम वी आर गेटिंग द कंसेप्ट ऑफ इट. और लास्ट में आएगा ऑथर्स पर्पस और टोन. Yes, definitely I have mentioned so many types of tones are there. It is also included in our previous sessions. Okay, so please see that. Understand why the author wrote the passage and the attitude they convey. There are different types of tones is also there. Okay, so I hope you are getting it. What it actually say. बहुत बढ़िया था ये. Time management. Many students are suffering in cracking the RCs because they don't know how to or what type of time they have to devote themselves towards the RC cracking. So here is some of the basic things that I feel that if I am a student and if I want to go to the exam, then I definitely give this kind of time management. First, allocate a specific amount of time. You have to devote your time. RC is also there and we have to crack it. So certain number of specific time is also there. Just like read the passage and answer the questions. For example, 5 minutes में आपको passage read करना है with understanding. After that, if I don't need to see the answer, don't need to read the paragraph, I will definitely crack those questions. 10 minutes for the answering. If I have only 20 minutes, please see this. This is the most important thing. If I have 20 minutes only for it, and if I have 30 questions, so how would I devote 15 minutes towards the RC? For that particular purpose, you needs to be given 15 questions as early as possible within a 5 minutes. जो ग्रामर का सेक्शन आता है उसको as early as आपको खत्म कर देना पड़ता है. अगर 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमको नहीं आते हैं, सो उसके लिए हमको डिवोटेड अदर बराबर से क्या बोलते हैं 5 मिनट में ये खत्म हो जाएगा और अगली 5 मिनट्स में हमको जो 5 क्वेश्चंस है विच आर वेरी टफ और डोंट नो, सो वी हैव टू आल्सो गो थ्रू दिस 5 मिनट्स. और बची हुई हमारी जो 10 मिनट है, आई थिंक आई हैव ओनली गेटिंग द 10 मिनट्स, हियर द 15 मिनट्स इज रिटन. 10 मिनट में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ आरसीज अटेंड करने हैं. स्किप करना नहीं है. 10 minutes are there. I think 8 minutes is also sufficient to see through or go through the whole passage. 4 मिनट और 3 मिनट्स में आपको पैसेज रीड करना है विद अंडरस्टैंडिंग और बाद में मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वेश्चन पैराग्राफ. So we are majority solving it. Don't be in the mindset with go through the exam that the RC is very complicated. They are easy, but we needs to devote the time. Sir, time ही तो नहीं है, so वही निकालना है. इसीलिए तो हमको दूसरी बाबत पे थोड़ा बहुत ज़्यादा फोकस करना है. So this is the thing. Practice with the time reading comprehension exercise to improve your speed and accuracy. अगर आप बैठे हैं टेस्ट देने, मॉक देने, तो आप बाजू में टाइमर लगाए कि ये आरसी में सॉल्व करने में मेरे को कितना टाइम लग रहा है. अगर आधा घंटा हो जाता है तो कोई बात नहीं, होने दो. पहला है, दूसरा है, तीसरा है. अगर आप 25-30 आरसी सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर टाइम रिड्यूस नहीं हो रहा है तो वी नीड्स टू इम्प्रूव समथिंग. जस्ट लाइक वोकेबलरी इंप्रूव करना है, रीडिंग फास्ट करनी है, क्वेश्चंस किस तरह टैकल करना है, वो अंदाज आपको तभी आएगा जब आप खुद से सॉल्व करोगे. इधर ये स्टेज पे रीडिंग कॉम्पिटेंस का सेशन इसीलिए दिया हुआ है. IBPS की कोई भी एग्जाम में अगर आप सॉल्व करने जाते हो तो आपको सिर्फ एक बाबत का, एक मैटर का ध्यान रखना है. वो मैटर बस इतनी है कि आपको आरसी के लिए जो कुछ भी बन पड़े वो करना है, नहीं छोड़ना नहीं है. इसके हिसाब से ही तो हमको कट ऑफ में मार्क आएंगे. सो प्लीज रिमेंबर दिस. यस, प्रैक्टिस विद द टाइम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस एक्सरसाइज टू इंप्रूव योर स्पीड एंड एक्यूरेसी. 1-2 आरसी से नहीं होने वाला है. अगर 1-2 आरसी हो जाए और डायरेक्ट क्रैक हो जाए तो सभी बच्चे पास हो जाएंगे एग्जाम में. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Please remember this. You needs to at least give at least 50 to 60 RC. Then आपको समझ में आएगा कि RC इस तरह से होता है. बाद में क्या करना है मालूम है आपको? फिर से वही जो RC है 50 और 60 देखे ना, वो पहले से आपको स्टार्ट करने होंगे दोबारा, तो आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग आएगा. एक बहुत बढ़िया वर्ड है. अगर आपने बचपन में कोई मूवी देखी होगी ना तो वो आपको बहुत पसंद होगी, लेकिन उसको अभी आप दोबारा देखोगे ना, जस्ट लाइक रामायण, तो आपको उसके मीनिंग पता चल जाएंगे क्योंकि यू हैव गेन द मैच्योरिटी.
When you go once, you are not getting that kind of sufficient knowledge. But when you go twice or thrice, then you are enhancing your knowledge. I hope session में बहुत मजा आ रहा है आपको. Definitely, I am enjoying it. So next आएगा 6 नंबर पे, critical reading strategies. कोई भी टीचर्स आपको ये नहीं बताएगा जो मैं आज बताने वाला हूँ. आइडेंटिफाई द थीसिस स्टेटमेंट. अगर कोई स्टेटमेंट है और वो आपको पता चल जाएगा कि ये किस टोन में बोल रहा है और किस टोन में लिखा हुआ है, जस्ट लाइक यूजुअली फाउंड इन द इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन. शुरुआती 2-4 लाइन होगी ना, उसमें पता चल जाएगा कि ये पैसेज किस बारे में है. सो यू नीड टू जज इट, और एट द कंक्लूजन, दोनों में से एक में ही होगा. क्या इंट्रोडक्शन में होगा या कंक्लूजन या अंत में होगा. दिस इज द मेन आर्ग्यूमेंट और पॉइंट ऑफ द पैसेज. किसी भी पैसेज का वो हार्द होता है, वो क्रक्स पार्ट होता है, उसको आपको समझना ही होगा. वो 2-4 शुरुआत की लाइन में होगा या 2-4 अंत की लाइन में होगा सही. नेक्स्ट आएगा, लुक फॉर द ट्रांजिशंस वर्ड. प्लीज टेक अ नोट डाउन. दीज आर द वर्ड्स वो शो कर रहे हैं कि इसमें क्या ट्रांजिशन, क्या बदलाव ला रहे हैं. जस्ट लाइक द वर्ड्स लाइक हाउएवर, कॉन्ट्रास्ट जाएगा. देयरफॉर वो रिजल्ट दिखाएगा. इन एडिशन कुछ और ऐड हो रहा है, एक्सेट्रा. सिग्नल शिफ्टिंग इन द आर्ग्यूमेंट्स और द की पॉइंट्स. मैंने आपको बहुत बार बोला है, सम ऑफ द ग्रामर पॉइंट्स आर ऑल्सो यूजफुल इन. हाउएवर कॉन्ट्रास्ट है, क्या बोला है सर, कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट स्टैंड्स फॉर, उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, अपोजिशंस दर्शाया दोनों सेंटेंस में. नेक्स्ट आएगा देयरफॉर इज शोइंग द रिजल्ट. समटाइम इट इज ऑल्सो शोइंग द कॉज. एंड लास्ट वन आएगा इन एडिशन. कुछ एक्स्ट्रा डिटेल वो लोग दे रहे हैं हमको टॉपिक के लिए. सो इट इज द वर्ड्स दैट यू गो थ्रू इट. नेक्स्ट आएगा समराइज पैराग्राफ. ब्रीफली समराइज ईच पैराग्राफ टू द एंश्योर यू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया बिफोर यू मूविंग इट. हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन अगर हमको पैराग्राफ वाइज हम सॉल्व करेंगे ना, तो मेजोरिटी आंसर्स वी आर गेटिंग इट. सो डोंट ट्राई टू गिव ऑल द क्वेश्चंस इन अ लाइन. इस पैराग्राफ में मैंने पहले स्कीम किया, कोई वर्ड मेरे को क्वेश्चन में से मिला तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा उसको सॉल्व करने के लिए. कहाँ पे, आरसी में से. सो मेजोरिटी वी आर डूइंग दैट काइंड ऑफ थिंग्स. सो दिस इज द वन ऑफ द नाइस थिंग. ओके, थर्ड लास्ट क्या है, प्रैक्टिस रेगुलरली. डेफिनेटली आरसी एक दिन में नहीं होने वाला है. यू नीड्स टू एटलीस्ट सॉल्व एंड क्रैक 1 आरसी एट अ डे. डेफिनेटली सर हमको ये डेली कहाँ से मिलेगा, बहुत सारे साइट्स हैं, हमारे एप्लीकेशन पे भी रखा हुआ है, यू कैन डाउनलोड इट. हाँ, यूज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. डेफिनेटली डायरेक्ट मत देखिए मेरे हिसाब से. डोंट यूज द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डायरेक्टली. फर्स्ट सी पहले थोड़ा इजी देखिए, बाद में थोड़ा इंटरमीडिएट देखिए, और लास्ट में थोड़ा एडवांस देखिए. सभी टाइप के देखने पड़ेंगे आपको. सैंपल पैसेज फॉर द प्रैक्टिस किस तरह का आएगा वो देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है कि इस तरह का लेवल हमको पहुंचना है, लेकिन शुरुआत तो थोड़े इजी से ही करना. हाँ, डेफिनेटली. नेक्स्ट आएगा जॉइन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टडी ग्रुप्स फॉर द फॉरम्स और डिस्कशन एंड टिप्स. अगर आपके बाजू वाला भी आपके साथ ऐसे ही तैयारी कर रहा है तो उसके साथ डिस्कस करिए, आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, मैं इस तरह से कर रहा हूँ. आप डिस्कशन करेंगे तो कुछ तो नया आपके पास निकलेगा. टेक ऑनलाइन क्विज एंड मॉक टेस्ट एंड assess your progress. Just read, solve and correct it. So correcting the mistakes is all the best thing. Okay, this is the simple thing. I hope you get it, the concept. Yes, review and reflect. This is the most important thing. देखिए क्या लिखा है इधर, बहुत बढ़िया. First, after completing the practice passage, अगर आपने 50, 60, 50, 60 have completed, review your answers. Every day you have to review it and explanations for any mistakes. अगर कुछ गलती हुई ना, उसको भी हमको सुधारना पड़ेगा, वही देखना है. Reflect on the strategies that worked well and areas that need to improvement. Definitely. अगर किसी जगह पे गलती हो रही है तो उसको ढूंढिए, एनालिसिस करिए और सुधारिए, तभी आपका आरसी बहुत अच्छे से होगा. नेक्स्ट आएगा कीप अ जर्नल ऑफ डिफिकल्ट पैसेज. अगर एक साइड पे अगर कोई पैसेज मेरे को अच्छा मिला जो मेरे को बहुत दिक्कत दे रहा है, सो उसका कलेक्शन कीजिए साइड पे और ट्राई टू सॉल्व देम एज मेनी टाइम एज नेसेसरी. यू विल डेफिनेटली गेट द व्हाट द एक्चुअली पैसेज इज सेइंग. ओके, नेक्स्ट आएगा stay calm and focus during the exam. Mental state is also there. If you focused and wants to crack the examination, you needs to be calm. You needs to be focused on what the actually passage is saying. उसके टाइम पे अगर एक सवाल आपको नहीं आता है और अगर आप सोच में पड़ जाओगे कि मेरी एग्जाम बहुत बढ़िया नहीं जाएगी, पहले से ही बोल रहा हूं मैं, अगर 10 क्वेश्चन है आरसी के तो 8 आपको आने चाहिए, 9 और 10 नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. उसके लिए 2.5-3 लाख थोड़ी वर्ड आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ.
सो जस्ट डू दिस वन थिंग, अगर 10 में से 6 भी मैं करेक्ट करता हूं लेकिन परफेक्ट होता है ना तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है। समझ में आ रहा है? आरसी इज द दैट काइंड ऑफ थिंग्स व्हेन एवरीवन हैज टू बी एंगेजिंग इन अ डिफरेंट वे. If I go with the calmer mindset, then definitely it is very useful to me. So I hope you are getting the concept. Next, read the questions before the passage to know what they look for. पहले आपको questions की scheme करनी है, उसमें से कोई word है, कोई proper word है, key word है, उसको निकालना है, वो डायरेक्ट देखना है आरसी में. पहले questions देखने, बाद में आरसी देखना है. समझ में? पहले आरसी नहीं पढ़ना है, वो गलत मेथड है आपकी. नेक्स्ट आएगा, अवॉइड गेटिंग स्टक ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चंस, मूव ऑन एंड कम बैक इफ इट्स परमिट्स. अगर कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत दे रहा है, चले जाइए वहां से, नहीं करना है हमको. लेकिन जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको झड़प से विथ वेरी रैपिडली राउंड यू हैव टू डू इट. ओके, एंड इफ देयर इज अ चांस टू गेट अ टाइम एट द एंड, देन गो दैट क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी अनकंडीशनल और वेरी नॉट फैमिलियर विथ यू और डिफिकल्ट है, उसको बाद में आप जाइए, वहां पे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं. स्टे काम एंड मेंटेन फोकस टू इंप्रूव द कॉम्प्रिहेंशन एंड रिकॉल. डेफिनेटली फोकस एंड स्टे एंड काम. सो हो ही जाएगा यार, क्या कर रहे हो ब्रो. आप अगर बहुत टेंशन लोगे ना तो किसी दिन नहीं होगा. उसके लिए लास्ट में हेल्थ एंड वेलबींग. अगर एग्जाम देने जाओ, अगर आपका हेल्थ बराबर नहीं है तो नहीं चलेगा, आप एग्जाम दे ही नहीं पाओगे. अगर दे भी दिया तो वो नहीं होगा जो उत्साह पहले होना चाहिए था. सो इफ यू आर इफ यू आर फॉलिंग एन इल, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू डू नॉट हैव टू मेड इल ऑन दैट पर्टिकुलर डे. यू नीड्स टू बी फ्रेश. जिस जगह पे एग्जाम सेंटर है वहां पे 2.5-3 घंटे पहले पहुंच जाओ. सो कोई दिक्कत नहीं चले. ट्रैवलिंग का असर आपके बॉडी पे नहीं होना चाहिए. क्या बोल रहा है सर? एंश्योर यू गेट इनफ रेस्ट. पूरा आराम तो लेना है. दूसरा, एंड मेंटेन अ हेल्दी डाइट. जो कुछ भी खाओ ना वो बाहर का मत खाओ उस दिन. हाँ, एग्जाम खत्म हो जाए बाद में खाने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. सही है? यस. एग्जाम प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स. अगर आप सुबह उठ के मेडिटेशन करते हैं बहुत बढ़िया है. अगर आपने 2-3 महीने जो मेडिटेशन किया है ना तो आपको मेडिटेशन की इफेक्ट दिखेगी. आप पर्सन बिकम अ डिफरेंट थिंग. देयर इज अ फेमस थिंग्स दैट आई हैव सीन सो मेनी प्लेसेस. If you do meditation for one week, it will be very calmer to your mind. If you do meditation for 1 month, it will remove your brain fog from your mind. And if you do meditation for 1 year, you are no longer the same person who have started the meditation. So if it is there, please do this kind of things. Ensure you are getting this. Oh, ho gaya. Practice relaxation techniques such as a deep breathing or meditation to manage the stress. It is all your responsibility to crack the examination. Yes, we are guiding, definitely guiding. We are always here to help you. So if there is a suggestion, please tell us. I hope you are enjoying the batch and get the concept of what the reading comprehension is saying that. So I hope this is the one of the best session on RC I have delivered till now. आरसी की प्रैक्टिस आपको करनी है. थोड़ी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दी है, उसकी तरह से आप जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. सो दैट्स इट. इफ यू लाइक अवर वर्क, प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब एंड टेल अस अदर्स दैट वी हैव सो मेनी काइंड ऑफ पोटेंशियल टू डिलीवर दैट काइंड ऑफ लेक्चर्स. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. आई होप यू हैव एंजॉय लॉट एंड लर्न अ लॉट. ओके, थैंक यू.